and I want someone to quickly read this. दिव्यांश जरा पढ़ोगे इसको फटाफट. हाँ जी सर. X meridian altitude sun. Sometimes you may find that it is not possible to obtain the meridian altitude of the sun or other celestial body owing to clouds, hazy horizon, rainy or other causes. In such cases, it may be possible under certain conditions given below for you to observe the celestial body near the meridian and by use of a scientific calculator or by nautical tables, calculate the latitude where the LOP cuts the DR longitude, called the observed latitude or observed lat. Observed lat is not necessarily the latitude of your ship. You obtain the direction of the LOP in the usual manner, calculate the azimuth and apply plus minus 90 degree to it. Then draw the LOP through the observed lat and DR long. The circumstances under which you may work a site by the X-meridian method is governed by the values and names of the latitude and declination. You obtain value of X-meridian limit (EML) from nautical tables. If using Murray's table, you have to consult X-meridian table 1 to 4 to obtain EML X-meridian limit. X-meridian table 1 is in two parts, one for latitude and declination having same name and the other for latitude and declination having opposite names. The EMLs obtained will be in minutes of time if the EML is found to be 16 minutes. It means that an X-meridian site may be taken up to 16 minutes on the either side of the time of meridian passage as illustrated below. Ship's time of meridian passage is 1206. X-meridian limit from nautical table is plus minus 16. X-meridian site may be taken between ship's time 11:50 and 12:22. The rough thumb rule for EML: calculate the latitude difference declination, lat and D, where lat and declination same name subtract and opposite name add. Square of the nearest whole number of degrees and just call the value of the EML in minutes of time. Example, DR lat is 20 degrees 6 minutes north and declination is 20 degrees 30 minutes south. Then approximate EML is equal to latitude difference declination is equal to 41 whole degrees. Approximate EML equal to 41 minutes. When a body is said to be near the meridian, you are expected to work it by the X-meridian method. The solution to an X-meridian problem should state the observable lat, the DR long, and the direction of the PL. Okay, you can stop here. So there is a formula over there, X-meridian formula. Earlier we had used two formulas, if you remember, cos P, by which we find the angle P for long back round method, and cos CZD for the intercept method, where we find the calculated zenith distance and compare it with the true zenith distance to get the intercept. Now we come to a third formula, cos MZD. This is the third type of formula for 3 PLs हो गया. Polaris के लिए you have your tables, and lat by Meralt you have the simple formula latitude is equal to MZD plus minus dec. So cos MZD is equal to cos TZD plus within brackets 1 minus cos P into cos lat cos dec. एक एग्जाम्पल अभी कर लेंगे, so that टेबल भी चेक कर लेंगे दोनों तीनों तरीके से करके जो भी हमने करना है. लिमिट्स भी चेक कर लेते हैं, so that
we know all the aspects of this. Okay, so I hope everything is clear in this one. काफी slowly और आराम से मैंने समझा दिया सबको. X meridian limits, L difference D, same name subtract, opposite name add. So the formula is cos mzd is equal to cos tzd plus 1 minus cos p into cos lat dr lat ही हम लोग लेते हैं to cos. इस फॉर्मूला में कोई साइन नहीं है. cos tzd 1 minus cos p. तो हमको क्या क्या निकालना है अभी? वर्किंग से tzd निकालना है, एंगल p निकालना है, लैटिट्यूड तो दिया है क्वेश्चन में. देयर इज अ क्वेश्चन ऑन 4th March 2008 we are doing the work example. dr 27 degrees 18 minutes north, 168 degrees 11 minutes west. The sextant altitude of the sun's lower limb near the meridian. देख लो क्वेश्चन में क्लियर लिख रहा है near the meridian. So you are expected to work by this method. So sun lower limb 56 degrees 19.8 minute. When the chronometer showed so and so, chronometer error, height of eye 12 meters, index error 2.8 on. Find the direction of LOP and a position through which it passes. तो हम लोग GMT काफ़ी कैलकुलेट कर लिया, so we will take the GMT directly over here. Obtain the correct date and hours. LMT तुमको लगाना पड़ेगा इसमें भी डेट निकालने के लिए, जैसे हम निकालते हैं पहले. तो नियर द मेरिडियन है तो LMT क्या होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली? ये सन का केस है तो 12 बजे के आसपास वाला करेक्ट टाइम होगा. डे टाइम होगा, दूसरा तो रात को ही आएगा. बट फॉर अदर बॉडीज यू विल हैव टू सी. Okay, so in this case I am writing GMT 04 days मार्च का 23 hours 14 minutes 44 seconds. 23 आवर आएगा क्योंकि लॉन्गिट्यूड तुम्हारा बहुत दूर है, 168 डिग्रीज है, तो 10-12 घंटे का तो फर्क पड़ेगा ही तुमको. ठीक है, 11-12 घंटे का जो भी है. ओके, नाउ वी विल प्रोसीड. और थोड़ा सा अल्मनाक वगैरह निकाल के मुझे बताना शुरू कर दो. प्रिंस तुम हो सामने? यस सर. तो पहले निकाल लेते हैं एंगल पी. यस सर. तो GH क्या होगा? 4 days. ये एग्जांपल कर रहे हैं. एग्जाम्पल का कर रहे हैं.
GHA 4 डे 23 आवर्स का होगा सर 162 डिग्री 6.4 मिनट्स। 162 degrees 06.4 मिनट। सर इंक्रीमेंट होगा 14 मिनट 44 सेकंड्स के लिए। का साथ साथ बता देते तो ठीक रहता। डेक्लिनेशन होगा सर 6 डिग्री 3.2 साउथ। डी करेक्शन क्या है सर डी करेक्शन 1.0 है -0.2 कम हो रहा है। एल्मेनेक से बता रहे हो एग्जाम्पल से बता रहे हो? एग्जाम्पल गलत हुआ तो होगा। एल्मेनाक से बता रहा हूँ। सो डेक्लिनेशन भी लिखना था, यहाँ मैंने डेक्लिनेशन नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं डेक्लिनेशन 06 डिग्रीज 03.0 मिनट साउथ। GHA इंक्रीमेंट का कितना आ गया? 14 मिनट 44 सेकंड का। सर 3 डिग्री 41 मिनट। सो GHA और द GMT कितना हो गया? 165 डिग्री 47.4। लॉन्गिट्यूड वेस्ट सर माइनस हो जाएगा सर। लॉन्गिट्यूड वेस्ट GMT वेस्ट, तो LHA कितना हो जाएगा? इसमें 360 अगर हम ऐड कर दें तो कितने से करोगे? 60 सर 357 डिग्री 37 मिनट। 525 47.4 माइनस 168 11.0 कितना आ जाता आंसर? 357 डिग्रीज 36.4 मिनट। तो एंगल P क्या बना? 2 डिग्री 23.6 है। So 002 डिग्रीज 23.6 मिनट। ठीक है, तो ये बिफोर द मेरिडियन हुआ कि आफ्टर द मेरिडियन हुआ? बिफोर। 180 और 360 के बीच अगर LHA होगा तो बॉडी अभी भी इस साइड में है, तो एंगल P 2 डिग्री उस तरफ है बिफोर क्रॉसिंग द मेरिडियन, क्योंकि LHA 357 आया। अगर डायरेक्ट LHA 2 डिग्री होता तो एंगल P भी सेम होता, तो बॉडी ऑलरेडी क्रॉस द मेरिडियन। ठीक है, ये पॉइंट हर समय हर बार डिस्कस हुआ है, तो आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ इट। अब PZD निकालना है। TZD एक्सटेंट ऑल्टीट्यूड कितना दिया है? 56 डिग्री 19.8 मिनट्स। 56 डिग्रीज 19.8 मिनट। इंडेक्स एरर ऑन द आर्क है सर 00 डिग्री 02.8 मिनट्स। ऑन दी आर को क्या करते हो? माइनस करते हैं सर। माइनस 17.0 56 डिग्रीज। डिप कितना है? 12 12 मीटर का। मीटर है सर। 6.1 सर। कितना हो गया? 56 डिग्री 10.9। अपैरेंट ऑल्टीट्यूड। इसके बाद लगाएंगे टोटल करेक्शन, लोअर लिम्ब है सर 15.6 प्लस कर देंगे। $56 26.5
अब इसका नेमिंग कैसे होगा, क्योंकि मेरिडियन ऑल्टीट्यूड में तुम जो फार्मूला में डालोगे सब नेमिंग से ही होगा ना। 56 26.5 क्या लिखूंगा गौतम? साउथ होगा। साउथ लिखूं कैसे, क्यों? साउथ क्यों होगा? लैटिट्यूड नॉर्थ है सर, डेक्लिनेशन साउथ है। वेरी गुड, बॉडी साउथ में है। ट्रू ऑल्टीट्यूड, सो TZD ट्रू जेनिथ डिस्टेंस, उसका 90 माइनस करके रिवर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 33 डिग्रीज 33.5 तो सारा डेटा रेडी है हमारे पास फॉर्मूला में डालने के लिए। तो फॉर्मूला में डालिए, क्या वैल्यू आता है बताओ। अभी हम लोग TZD को MZD में कन्वर्ट करना है हमने। TZD को MZD में कन्वर्ट करना है, तो इस फॉर्मूला में डालेंगे तो cos MZD कितना आएगा बताओ? 0. वर्कआउट कर रहे हो? सर MZD की वैल्यू है 33 डिग्री 28.7 मिनट। cos कितना आया? cos MZD 0. वर्किंग कर लो, वर्किंग करोगे तो प्रैक्टिस ही होगा और कुछ नहीं। सर 0.83409। 83409। 09। सो MZD कितना आएगा? बाकी सब लोग भी करो साथ में। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग। 33 सर डिग्रीज 33 डिग्री 28.7 मिनट। 28.7 मिनट। सो MZD 33 डिग्रीज 28.7 मिनट्स। क्या नाम दूंगा? नॉर्थ या साउथ? तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने का है कि TZD 33.5 एंड MZD 33 28.7। हमने शुरू में क्या बोला था कि MZD थोड़ा इससे कम ही होना चाहिए, क्योंकि मेरिडियन पे जब आएगी बॉडी तो थोड़ा और नज़दीक हो जाएगी। एवरीवन नोटिस दैट? अगर तुम्हारा किसी वजह से MZD ज़्यादा आ जाता है TZD से, तो समझ लो कि तुम्हारी वर्किंग कहीं पर गलत हुई है। समझ रहे हो गौतम? यस सर। समझ रहे हो ना? तो जब MZD आ गया तो अब इसके बाद क्या निकालना है हमको? रिडक्शन सर। निकालेंगे? रिडक्शन निकालेंगे।
रिडक्शन क्यों निकालेंगे? रिडक्शन डिक्लेरेशन लगा के सर ऑब्जर्व लैटिट्यूड निकालेंगे। ऑब्जर्व लैटिट्यूड निकालेंगे ना। दूसरा मेथड भी दिया है टेबल वाला, अगर वो चाहो तो एक बार देख लेते हैं। टेबल देखना है? हाँ सर बता दीजिए एक बारी। एक बार देख बता लेते दो हैं। सर टेबल वाला। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर उस हिसाब से हम लोग आगे करेंगे। टेबल 1 वैल्यू ए, टेबल 1 से हमको ए मिलेगा। टेबल 2 से फर्स्ट करेक्शन मिलेगा। टेबल 3 से सेकेंड करेक्शन मिलेगा। ये अलग है, फर्स्ट और सेकेंड करेक्शन को हम लोग करेंगे तो हमको रिडक्शन मिलेगा। तो ये थोड़ा सा करके देख लेते हैं। तुमको मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। टेबल 1 ऐसे देखना है हमको। एक्स मेरिडियन टेबल 1, lat and x same name, change of altitude per minute is equal to फैक्टर a। तो हमारा lat and x सेम नेम है कि ऑपोजिट नेम है? लैटिट्यूड नॉर्थ है, डेक्लिनेशन साउथ है, तो हम लोग जैसे मैंने बताया था अलग अलग टेबल हैं, वी विल गो टू ऑपोजिट नेम वाला। ये सेम नेम चलता रहेगा। डेक्लिनेशन बढ़ रहा है, लेफ्ट साइड में लैटिट्यूड है, ऊपर में डेक्लिनेशन देखोगे तो बढ़ रहा है, ये 32 तक गया है। लैटिट्यूड बीच में 70 तक है इधर, अभी भी सेम नेम चल रहा है, 48 तक चला गया डेक्लिनेशन, सेम नेम। डिफरेंट नेम, लैटिट्यूड एंड डेक्लिनेशन डिफरेंट नेम। हमारा लैटिट्यूड क्या है? 27.3, 27 डिग्रीज 18 मिनट नॉर्थ, और डेक्लिनेशन है 6 डिग्री 3 मिनट साउथ। यही है ना लिखा हुआ सबने? सर तो 6 डिग्री 0.2 मिनट आ रहा है में। हाँ 6 डिग्री 3 मिनट है, इंटरपोलेट करना पड़ेगा ना। 6 और 7 डिग्री के बीच में 3 मिनट का कितना इंटरपोलेशन आएगा देख लेते हैं अभी। तो 6 और 7 यहाँ पर देख लिया हमने। लैटिट्यूड 2718 और 7 कौन सा कॉलम नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो इसको मार्क करके रखो। लैटिट्यूड 2718, तो अगर नज़र आ गया उसी में तो ठीक है, आ गया 2718। तो पहले 6 डिग्री का देख लो कितना है 27 में, कितना आ रहा है? पढ़ो स्क्रीन से, 3.19। 3.19 आ रहा है ना? हाँ जी। ठीक है, 3.19। और 7 डिग्री का कितना है? 3.11। करेक्ट। तो यस सर। 6 डिग्री 3 मिनट के लिए मैं कुछ आगे बढ़ूं या इतने पे ही छोड़ दूं? 3.19 पे ही छोड़ दूं? 3 मिनट ऑफ 1 डिग्री इज 1/20। ये 0.08 कम हुआ है, तो कुछ करने की जरूरत है?
6 डिग्री 3 मिनट मेरा डिक्लिनेशन है। 6 डिग्री का 3.19, 60 डिग्री का 3.11, डिफरेंस इज 0.08। 0.08 को मैं 20 से अगर डिवाइड करूं इंटरपोलेट करने के लिए, क्योंकि 3 मिनट इज 1/20, तो 0.08 डिवाइड बाय 20 अगर करूं तो 0.004 आता है। तो उसका उतने डेसिमल प्लेस पे तो हम जा ही नहीं रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड। व्हाट डू यू थिंक? सर 4 मार्च का डेक्लिनेशन सन का 6 डिग्री 0.2 मिनट आ रहा है 23 घंटे का। क्या लिखाया है मुझे जिसने मैंने वो लिखा 6 डिग्री 3 मिनट। सर ये नॉटिकल एल्मेनेक में 2008 4 मार्च का 23 घंटे का 6 डिग्री 0.4 मिनट है, और जब डी करेक्शन लेगा तो 6 डिग्री 0.2 मिनट हो जा रहा है बस। एक सेकंड देख लेते हैं। बुक में कोई दिया खास हुआ है फर्क 6 नहीं पड़ रहा डिग्री है। 3 मिनट। चलो जो भी ले लिया तुम लोगों ने, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ सर। बुक वो में डेक्लिनेशन सर 92 का है। बुक में 6 डिग्री 3 मिनट साउथ दिया है इसमें। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा जो ले रहे हैं हम लोग। नहीं सर, फर्क नहीं पड़ेगा उतना उससे। नहीं पड़ेगा ना, तो छोड़ दो उसको। अभी जो क्वेश्चन हमारे सामने है उसकी बात करो। इसका इंटरपोलेशन कैसे करना है? 3.19 ले लूं या उसको और आगे तोड़ना है? तोड़ने की जरूरत नहीं है ना, उससे कितना कम करोगे? 0.004 कम करोगे तो 3.186 ऐसा कुछ आएगा। उतना तो हम थर्ड डिजिट में जा नहीं रहे ना। तो 28 डिग्री का कितना है? 3.17। एक्चुअली तुम लोग टेबल को यूज टू नहीं है ना, हम लोग तो सारी जिंदगी टेबल यूज करते थे। हमारे टेबल 5 डिजिट तक के होते थे, वो जो बर्टन्स एंड नोरीज। तो हम लोग तो 3.08 सर। मेंटली 6 डिग्री। इंटरपोलेट कर लेते थे सारा। हाँ 3.08 है ना 28 का। 3.08 यस सर। 3.08। तो इसमें इंटरपोलेशन हो सकती है 27 डिग्रीज 18 मिनट यानी 27.3। तो इसका डिफरेंस है 11 डिफरेंस है। तो 1 डिग्री का डिफरेंस 60 मिनट का डिफरेंस 11 है। 18 मिनट का डिफरेंस कितना होगा? 11/60 इंटू 18 कितना आ जाएगा? सर बेस यू है क्या सर? 18 हाँ 3.3 सर। 3.3। सो सर मेरा में कुछ और 3.3 है का सर। क्या मतलब होता है? 3.3 डायरेक्ट नहीं होगा, 0.03 होगा या 0.3 होगा, क्या होगा? डेसिमल देख के करो। सर 0.33 रहेगा वो। 0.3 रहेगा। 0.33। ये 0.11 है ना। सो actually difference is 0.11. So let me do it again. 0.11 into 18 divided by 60. 0.03 0.03 होगा। तो 3.22 आ जाएगा। ठीक है 3.22। डेसिमल चेक कर लो, 0.033 होना चाहिए। पेज नंबर 401 है ना? हाँ पेज नंबर 401 नंबर अब मुझे नहीं पता है। एक्स नोरिस रेडियन टेबल का टेबल बात 1। कर रहे हो?
Yes, sir. तो भी होगा 405 है मेरे बुक में 404 है 405 ऑपोजिट नेम है ना Yes, sir. Yes. ठीक है सो 3.22 है तो बुक में उसने वैल्यू ए का लिया है 3.20 हम लोग 3.22 ले लेते हैं 3.22 तो ए का वैल्यू निकल गया सब लोग का इसका वर्किंग का नोट्स भी दिया है नोरिस टेबल में अगर किसी के पास है तो ए निकल गया नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट करेक्शन एंड सेकंड करेक्शन एंड वी गो टू टेबल 2 ये टेबल 1 में जो हमने वैल्यू ए निकाला है इसको अभी अलग रख दो साइड में इसका क्या काम है मैं नीचे बाद में बताऊंगा तो नाउ वी गो टू टेबल 2 सबके स्क्रीन में मूव कर रहा है ये हाँ सर। ओके देख लो बीच बीच में वैल्यू नहीं दिया है तो यहाँ पर ना यू कैन नॉट टेक मैंने बताया ना कोई टाइम होता है जब तुम नहीं यूज कर सकते तो उस टाइम का फैक्टर ए दिया ही नहीं है अभी हमने फैक्टर ए निकाल लिया है लैटिट्यूड और डेक्लिनेशन ऑपोजिट नेम का करके हमने फैक्टर निकाल लिया एक्स मेरिडियन टेबल 2 सेकेंड करेक्शन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट करेक्शन फर्स्ट करेक्शन कहाँ गया टेबल 2 तो है ही नहीं इसमें ये फिर इसका मतलब वर्किंग के लिए दिखाने के लिए रखा हुआ है टेबल 2 तो मेरे पास है नहीं किसी और के पास है टेबल 2 गौतम तुम्हारे पास है Yes, sir. देखो टेबल 2 से फर्स्ट करेक्शन कैसे देखते हैं देख सकोगे Yes, sir. Yes, sir. शुरू में ना इसका वर्किंग का मेथड भी दिया होगा कहीं पर या तो टेबल के स्टार्टिंग में होगा या बुक के स्टार्टिंग में होगा हाउ टू यूज द एक्स मेरिडियन टेबल उसका भी एक अच्छा सा फोटो लेके बाद में जब टाइम मिलेगा ग्रुप में डाल देना सब लोग को पता चल जाएगा कैसे पढ़ना 9 ये है एक्स मेरिडियन टेबल 2 टेबल 3 सेकेंड करेक्शन टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट करेक्शन अब ऑल्टीट्यूड हमारा कितना है 26 डिग्रीज 30 मिनट के आसपास है (26 डिग्रीज 30 मिनट और फर्स्ट करेक्शन 4.9 है तो यहाँ पर तो 0 ही दिखा रहा है यस और नो ये तो स्टार्ट ही 15 से हो रहा है तो एल्टीट्यूड तो सेकेंड करेक्शन इज 0 एवरीवन कैन सी ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन ऑल्टीट्यूड हमारा जेनिथ डिस्टेंस सॉरी कितना है 33 तो 90 माइनस 33 40 56 डिग्रीज 30 मिनट 56 डिग्रीज 30 मिनट का उसके नीचे देखोगे तो फर्स्ट करेक्शन स्टार्ट 15 से होता है हमारा तो 4.9 है तो 0 तो सेकेंड करेक्शन इज 0 which is to be subtracted so reduction is 4.90 reduction is 4.90 इसको मैं सब बोर्ड में लिखता जा रहा हूँ ये सब हम लिख के आगे बढ़ते हैं वापस बोर्ड में आ जाऊंगा रिडक्शन 4.90 आ गया ठीक है उसके बाद एक और चीज जो तुमको दिखाने वाली है एक्स मेरिडियन टेबल 4 लिमिट्स फॉर यूजिंग एक्स मेरिडियन टेबल मिनट्स ऑफ टाइम बिफोर और आफ्टर मेरिडियन पैसेज इसमें हमारा ए का वैल्यू कितना आया था 3.22 3.22 के अगेंस्ट देखो कितना मिनट दिखा रहा है
Sir, somewhat around 30 minutes. एक्स मेरिडियन लिमिट 3.22 के अगेंस्ट दिखा रहा है, दोनों के बीच का हो जाएगा तो हाँ 31 मिनट, 30 मिनट ले लेते हैं, 30 मिनट्स। तो ये चारों टेबल तुम लोगों ने देख लिए, तो अभी हम बोर्ड पे चल के इसको फाइनल करते हैं। तो ठीक है, अनशेयर कर देता हूँ। टेबल तुमको यूज करने का जरूरत नहीं है, तुम लोग कैलकुलेटर मेथड से ही कर लो। ये जस्ट बिकॉज टाइम था और किसी ने बोला कि चलो देख लेते हैं। अब ये देख लो, रिडक्शन तुम्हारा 4.9 आया। तो जो टेबल वाले मेथड से क्या करते हैं, TZD 33.5, रिडक्शन 4.9, MZD कितना आ गया, (33° 28.6) और हमारा कैलकुलेटर से आया था 3328.7। अब सेम है ऑलमोस्ट। बाकी अगर इंटरपोलेशन बहुत बारीकी से करोगे तो क्या पता 28.7 भी आ जाए तुम्हारा। तो ये तो एक चीज हो गया। दूसरा हमने देखा एक्स मिनट लिमिट 3.22 का निकाला 30 मिनट। ये करके देख लेते हैं लैट और डेक अप्रोक्सीमेट क्या आता है। तुम्हारा डेक्लिनेशन है 06 डिग्रीज और ये है 27 डिग्रीज। हाँ, हमको राउंड फिगर लेना है वैसे भी डिग्री का। तो ये ऑपोजिट नेम है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो हम ऐड करेंगे 33 मिनट। दोनों को ऐड करोगे 33 मिनट। और यहाँ तुमने देखा टेबल से 30 मिनट या 31 मिनट आ रहा था, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है टेबल वाला। ये एक थंब रूल है अप्रॉक्सीमेट मेथड। लैटिट्यूड डेक्लिनेशन का डिफरेंस निकाल लोगे, ऑपोजिट नेम ऐड, सेम नेम सब्ट्रैक्ट। तो डिग्री को करोगे प्लस माइनस, लेकिन आंसर मिनट में तुम नोट करोगे 33 मिनट। तो ये दोनों पॉइंट भी क्लियर हो गया सबको। टेबल देखना आ गया सबको, वैल्यू ए से लिमिट निकालना आ गया और एल डिफरेंस डी से भी लिमिट निकालना आ गया सबको। गौतम, यस सर। तुम जो न्यूमेरिकल कर रहे हो उसमें तो शायद तुमको लिमिट निकालने को नहीं बोल रहा है, अभी जो एग्जांपल किया इसमें नहीं बोल रहा है। बट यू शुड नो कि जब एक्स मेरिडियन लेते हैं तो उसका एक लिमिटेशन होता है, जब चाहे हम नहीं ले सकते। और अगर बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें पूछ ले तुमसे प्रिंसिपल क्वेश्चन की इतने बजे लिया, क्या ठीक लिया कि नहीं लिया, तो मेरिडियन पैसेज निकाल के अगर तुम बता सको तो ठीक है, विद इन लिमिट्स था या नहीं था। एल डिफरेंस डी कर लेना अप्रोक्सीमेट मेथड, अदरवाइज ये तुमको ज़्यादा फेज 1 में काम आएगा एल डिफरेंस डी। सर बट अभी ऐसा क्वेश्चन थोड़ा ना देगा जिसमें एल डिफरेंस ज्यादा रहेगा उससे। नहीं, जो तो क्वेश्चन दे रहा है वो तो ठीक है, अभी तो यही मेरा कोई क्वेश्चन इश्यू आएगा नहीं। कि मैं बोल रहा नियर हूँ द अगर बाई मेरिडियन। चांस प्रिंसिपली क्वेश्चन कोई पूछे, हाँ जी या या जैसे ओरल एंड कभी ऑल। कभी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना कि कब ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, अगर कोई आ जाए बाई चांस तो एटलीस्ट यू शुड नो कि एक लिमिट होता है इसका। ठीक है, तो ये तुमने देख लिया, टेबल से करो चाहे फॉर्मूला से करो, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। नाउ वी कम टू द लैटिट्यूड पार्ट। लैटिट्यूड इज इक्वल टू MZD प्लस माइनस डेक। MZD हमको मिल गया 33 डिग्रीज 28.7 मिनट्स नॉर्थ। डिक्लिनेशन हमको मिल गया 06 डिग्रीज 030 मिनट साउथ। तो लैटिट्यूड क्या होगा, ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा?
सर सब्ट्रैक्ट होएगा। यस गौतम, ऐड करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा? डिफरेंट नेम सब्ट्रैक्ट सर, सेम नेम ऐड। हाँ, सब्ट्रैक्ट होगा। सेम नेम में ऐड होता है, ऑपोजिट नेम में सब्ट्रैक्ट होता है। यस सर। Z declination south, ज़ाइन डिस्टेंस नॉर्थ, डिक्लिनेशन साउथ। हमको निकालना है लैटिट्यूड, ऑपोजिट नेम सब्ट्रैक्ट। So 7, give the name of the larger one, 5 to 27 degrees. So DR था तुम्हारा 2718, ऑब्जर्व लैटिट्यूड आ गया 2725.7। ठीक है, अब PL निकालना है। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी हमारा टाइम निकल गया है क्योंकि थोड़ा सा इस टाइप का था। तो PL निकालने के लिए तुमको ABC करना है। ABC तो तुम लोगों ने काफ़ी किया हुआ है। सर ए की वैल्यू में यहाँ पे 10 ऑब्जर्व लेट लेंगे कि 10 DR लेट लेंगे? किसमें? जो ए लेंगे सर, हाँ 10 लेट अपॉन 10 पी होता है, हाँ, उसमें ए की वैल्यू, उसमें लैटिट्यूड जो है वो ऑब्जर्व वाला लेंगे कि DR वाला लेंगे? ऑब्जर्व ले लो, अब ज़्यादा एक्यूरेट मिल गया तुमको। वैसे कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं। ऑब्जर्व ले सकते हो ना? अब ऑब्जर्व मिल गया तो वो बेटर है बिकॉज यू आर समवेयर ऑन दैट। अगर तुम्हारा लॉन्गिट्यूड करेक्ट है तो वो पोजीशन तुम्हारी वही बन जाएगी। ये थोड़ा समझ जाओगे जब हम स्टैगर्ड या वो सब करेंगे। सर वैसे एजीमथ जो है इसने ऑब्जर्व से ही बना रखा है, तो फिर ऑब्जर्व लेट ही लेंगे। हाँ ऑब्जर्व लो, कहीं नजर आ रहा है बनाया उससे? वो नीचे बना रखा है ना सर उसने, उसका एजीमथ वगैरह नहीं, वो तो बनाएगा, पीएल बना ऑब्जर्व रखा है ना सर, पीएल वो डायग्राम। जो स्केच बनाना है वो तो तुमको ऑब्जर्व से ही बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि वही तो तुमने निकालना है। हाँ सर, तो फिर वो ऑब्जर्व से ही लेते हैं, तो उससे ऑब्जर्व ही से, बेटर रहेगा। because when you are observing actually you are there, no, somewhere over यस there. सर, यस सर। लॉजिकली देखोगे तो दैट इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, तो ABC तुम लोग निकाल लोगे, जो भी हम लोग काफ़ी निकाल चुके हैं ABC। एजीमथ के बाद 50 प्लस माइनस से तुम्हारा LOP आ जाएगा, और उसके बाद फ्रॉम वेयर टू ड्रॉ द PL, ये मैंने सेशन के शुरू में बता दिया था कि DR लॉन्ग और ऑब्जर्व लैट से तुम्हारी PL बनेगी, जो डायग्राम में तुमको सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो एक क्लास और मेरी है शायद तुम्हारे साथ, जब मैं सर्कमपोलर बॉडी कर लूँगा, प्रॉब्ली सैटरडे है। एंड अदरवाइज ये बच गया है तो इसको कर लो न्यूमेरिकल। इतना मुश्किल नहीं है जितना बोर्ड में दिखा, क्योंकि मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी समझा दिया फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, बट जब तुम न्यूमेरिकल करने जाओगे तो स्ट्रेट होगा। तो ये सब कर लेना, फिर कोई डाउट्स होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और जेंटलमैन, सो वी